Very good evening, guys. I hope I'm audible, everyone. Confirm करो भाई, आवाज आ रही है? Okay, great. So I gave you these two sets. So I believe this set is comparatively easier than the next one. Yes or no? Both evident है. It's not that difficult to figure out that which one is easier compared to the other one. I'm not saying this is easy sets as such, but yes, compared to that. At the same time, I can't say that this is a difficult set. It may land up between easy to moderate depending upon how well you can assess the correct answers for the given questions. Like जो बोल रहा है ना 10 correct answers में who has given all the correct answers. I think a similar kind of questions we have seen. I think we left that particular set because in that set it was not given that one person has got all correct answers, right? So I told you that if that is the case, then the case can be solved because by some method, if we can get any one person who got all the questions correct, then the set we can crack the questions immediately. ठीक है? So this particular set falls in that particular category. ठीक है? चलो तो आंसर्स आया था सबका. I think मैंने आंसर की भी दे दिया था because last time people said that कि आंसर की रहेगा तो it will be much better वगैरह वगैरह. तो I thought कि ठीक है मैं दे देता हूँ. आंसर आया था किसी का गई? किसका? पर बोलो भाई. प्रिपरेशन जोर शोर पे चलनी चाहिए. ठीक है, आवाज भी आनी चाहिए. ठीक है, अपन चेक करेंगे. वो तो खैर आंसर की से आपने चेक कर लिया होगा. इफ यू हैव गॉट इट ऑल द करेक्ट आंसर देन दैट इट्स गुड. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया, देखेंगे उसको. ठीक है, आउट ऑफ 4 और 5 क्वेश्चंस अगर एक क्वेश्चन बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स हो रहा है तो देन इट इज ओके. ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है. बट मैक्रो लेवल पे द थिंग्स शुड बी अंडरस्टूड. ठीक है, चलिए. सो फॉर टू हेल्प फॉर दोज पीपल हु हैवंट गॉन थ्रू दोज सेट्स, ऑल्दो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब मैं सेट दे रहा हूँ तो एटलीस्ट इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, है ना. 15-15 मिनट दो बिकॉज दैट इज द आइडियल टाइम यू शुड डिवोट एटलीस्ट. ठीक है, उसको दो आधे घंटे में. एंड जस्ट बिफोर दी दिस पर्टिकुलर सेशन, मे बी कपल ऑफ आवर्स बिफोर द सेशन भी दोगे, सो यू विल रिटेन योर डाउट्स आल्सो. ठीक है, सो इन दी ड्यूरिंग द सेशन यू कैन गेट योर डाउट्स आल्सो क्लियर. ठीक, और 2 बार रिपीट भी हो जाएगा बिकॉज वंस यू हैव गॉन थ्रू इट, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो जस्ट टू हेल्प दोज पीपल हु हैवंट गॉन थ्रू दिस सेट्स, what it says that there are 5 students, their names are A, B, C and D. ठीक है, these are the names and they are writing some test. उसके बाद the test has 10 MCQ questions and each question has 4 options out of which exactly 1 is correct. For correct questions 3 marks is awarded, for wrong 1 marks is deducted, and it is observed that one student got 30 marks. So can I say this guy got all questions correct? Yes, no? Guys, please be very quick and participative in giving the answer. मैं कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता हूँ, मैं फिर कंफर्मेशन के लिए पूछता हूँ. ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई विल बी श्योर एटलीस्ट कि मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा बिकॉज आई नो दैट आउट ऑफ दीज 5 इफ आई कैन फाइंड दैट गाय हु गॉट ऑल क्वेश्चंस करेक्ट देन द क्वेश्चन इज डन. ठीक है ना. फिर क्या बोला, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट स्कोर 10 marks each and 1 student score -10. So this is the minimum marks anyone can get, right? And the 5th student got the minimum possible positive integral scores. Each student attempted all questions, so nobody is leaving any questions. Okay, and the marks will range from -10 to 30. -10 is the minimum, getting all questions incorrect, and 30 is the maximum marks wherein all the questions are correct. Okay, so let us find out कि क्या क्या marks आए थे. So one person has got 30 marks, one person has got -10 marks. उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 people have got 10 marks each. ठीक है, 2 people have got 10 marks each and 1 person has got minimum positive integral. So minimum positive integral, ideally it should be 1, but let us see that can we get 1 marks in this particular scenario. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. Let us assume that x is the number of correct questions, y is the number of incorrect questions, so the total has to be 10. Correct. The marks would be what, 3x minus of y. Yes or no, guys? 3x minus y would be the marks. Now to make it minimum positive, the minimum is -10, but we want minimum positive. We can't make it 0 also. Okay, but we should start with 0 because if we can get for what number it is 0, somewhere close to that it will be the nearest positive. Okay,
So to make it 0, if I just want to make any assumptions over this, taking some integral values, so if I take this to be say 3 and this to be 7, how much marks it would be? If the number of correct is 3 and the number of wrong answer is 7, then how much marks it will be? 2. Okay, so let us reduce the number of right, make it 2, and the number of wrong 8. In that case, what would be the total marks? I think this will be negative, right? That means this is the scenario wherein we can get positive integral score. We can't get 1. ये बात clear है, right? That means the last marks or the 5th marks was 2. ठीक है भाई, clear है ये, right? So if somebody is getting 30 marks, how many questions he is getting right? He is getting all 10 right. If somebody is getting -10, that means he is getting 0 question right. This for 10 कैसे करेंगे? यही मार्क्स है ना, 3x minus y is equal to 10, and we know that x plus y is equal to also 10. We can add them. After addition, 4 of x is equal to 20, so the value of x is what? 5, which is nothing but right question. Because if I know the right question, obviously the corresponding wrong questions can easily be identified, because their sum has to be 10. इस केस में भी 5 हो गया, इस केस में we have identified that this is 3. ठीक है ना? So let us make one more row wherein we'll be writing the corresponding number of right questions each one of them is getting. ठीक है? Why did we just try 7-3? Assuming, can we try 6-4? हाँ करेंगे ना भाई, 6-4 ट्राई करोगे, 5-5 ट्राई करोगे. आपको मिनिमम की तरफ जाना है. मिनिमम इन द सेंस यू हैव टू मूव टुवर्ड्स 0. ठीक है? You start with say 4-6, then you'll do with 3-4, 3-7, then you'll do with 2-8. Then we'll identify ना कि 3-4 में काम हो रहा है, सॉरी 3 और 7 में काम हो रहा है. ठीक है सेजल? ठीक है, right. So this is about the right number of questions. Now our only objective would be to identify that who got all right. ठीक है? Now for that there is no other information given. So what I'll be doing is that I'll be picking this. There is one person who got all right and there is one person who got all wrong. So can I say none of their options will match? The person who got all right and the person who got all wrong, none of their options will match. ठीक है? So let us try to find out that pair. Which pair is or how many pairs are there among these 5 people wherein no questions is matching. ठीक है? क्वेश्चंस के हेल्प से भी इन्फो मिल रहा है. क्वेश्चंस के हेल्प से, हाँ ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे. ठीक है, हम एज्यूमिंग कि टीटा टाइप क्वेश्चन रहेगा तो कैसा होगा उसको अपन देखेंगे. ठीक. So let us assume AB. Can AB be that pair wherein one of these person is getting all right and the other person is getting all wrong, or vice versa? हो सकता है क्या? This is not matching, 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 but this is matching. Question number 6 is matching. That means AB is not that pair. What about AC? No. What about AD? Again no. What about AE? AE? AE हो सकता है क्या? कहीं ऐसा है जहां पे मैच हो जा रहा है? AE हो सकता है ना? AE can be that pair wherein one of the person is getting all right and the other is getting all wrong. I'm not saying that A is getting all right and E is getting all wrong. It can be other way around also, right? तो ये तो एक मिल गया. Now what about BC? नहीं, ये मैच कर दिया. What about BD? ये सब मैच नहीं कर रहा ना. What about BD? BD is कोई है ऐसा जो मैच हो जा रहा है? नहीं. तो BD भी हो सकता है ना.
Can I say BD is also possible, right? And last is BE. B is not possible because the first question itself is matching. First question itself is matching. Okay. Now the next thing what we can do is that let us take this particular case. Within that, let us assume that A is getting all right and E is getting all wrong, for example. Okay. Then other than A and E, B, C, and D, they should be getting 5, 5, or 3. This should be their distribution, not exactly in that particular order, but among B, C, and D, 2 people should be getting 5 right and 1 person would be getting 3 right. ठीक है, तो चेक करते हैं. Let us check A और B. A और B को चेक करते हैं because उसके साथ ये भी मैच हो ये वाला केस भी simultaneously आ जाएगा, right? So A और B को मैच करते हैं. Suppose assuming that these are all right answers, then this is wrong, 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 this is correct, right? This is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong. So if A is getting all 10 correct, then B is getting only 1 right answer. Is it possible? No. Why so? Because it should be 1 among 5, 5, and 3. That simply means that simply we can say, and other way around also we can say now that if B is getting all right, if B is getting all right, then A should be getting somewhere between 5, 5, and 3. ठीक है ना? या कंफ्यूज हो जा रहे हो? सेजल क्या पूछ रहे हो? सर, why is the number of correct answer 5, 5, 3? Could you repeat? बहुत सिंपल है ना? If you are getting 10 right, 10 marks, to get 10 marks, you have to get 5 right and 5 wrong. ये निकाला ना? This is marks. This is the total number of question. X is the total right marks, total right number of question, and Y is the total wrong question. So solve किया तो 4x is 20, so the value of x is 5. Am I clear? ठीक है ना? हाँ चलो, तो ये समझ में आ रहा है that this cannot be that person who will be getting all right questions. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Let us assume that E is getting all right. Again, compare it with B. So this is 1 correct. Then इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रहा है. There is only 1 correct. इसका मतलब E is also not that person who can get all right. That simply means that this pair cannot be that pair wherein one person is getting all correct and the other person is getting all the other person is getting all wrong. ठीक है, so इसमें से ही होगा. ठीक है, so let us assume that B is getting all correct. B is getting all correct. Then one among A, C, and E should be getting 5 or 3. चेक करते हैं. यहां से अगर चेक किए तो C is the right answer now. We are assuming, right? So this is not matching, this is not matching, this is not matching, this is not matching. Sorry, this is matching. ठीक है, अगेन इसमें भी 1 ही आएगा ना, तो पहले भी देख चुका था. इसका मतलब B is not that guy who is getting all correct. So can I say by default D is the only person who is getting all correct? Yes or no? Can you please confirm this? ठीक है ना, तो पता चल गया ना करेक्ट. उसके बाद क्रैक हो गया क्वेश्चन, और कुछ बचा ही नहीं है. नाउ बी इज गेटिंग ऑल करेक्ट, तो हम निकाल सकते हैं ना कि भी ए ने कितना करेक्ट किया, सी ने कितना किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं. ए कितना करेक्ट कर रहा है? ये करेक्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4 and 5. So A is getting 5 correct, D is getting 10 correct, so obviously B is getting all wrong. ठीक है, फिर C को देखते हैं. This is 1, 2, 3, right? And definitely ये 5 होगा, उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. This is 1, 2, 3, 4 and 5. मैच कर गया बस. ठीक है भाई, क्लियर है ना? तो वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस नाउ. इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट अस सी, अगर कुछ करना होगा तो बाद में देखेंगे अपन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हिच स्टूडेंट स्कोर 30 मार्क्स? ऑप्शन ए. हाउ मेनी मार्क्स डिड बी स्कोर? बी स्कोर -10 because number of right answer is 0. These are not marks है ना, these are number of right answers. ठीक है ना भाई, कंफर्म करो. पहला वो दो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है,
Then third, what are the correct answers for the last three questions in the correct order? So last three questions in the correct order is this, which is option A. Then how many questions were answered correctly by at least two students? How many answered correctly by at least two students? कम से कम दो, है ना? So ये तो obviously है. A दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है इस क्वेश्चन में तो है. C भी दो बार आ रहा है. D भी दो बार आ रहा है. B yes. A yes. B again yes. D again yes. C again yes. A again is yes. D again is yes. That means all 10 questions, at least two people are getting it right. ठीक है? Now fifth, how many questions were answered incorrectly by exactly two students? ये तभी होगा ना when there'll be three A's. ये repeat होने से, so every right answer should be repeated 3 times in the row, which is happening in the first case, right? और कौन से केस में हो रहा बताओ, which question number this is happening? थर्ड में D is repeated 3 times here, here and here. इसमें भी हो रहा है. फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में B यहाँ तीनों के रिपीट हो रहा है. और कोई हो रहा है? आई थिंक 3 ही आता है इसका आंसर, है ना? So there are 3 questions where exactly 2 students got it incorrect. ठीक है भाई. So it was so easy. The only objective was to identify who got the right sequence of answers for all the questions. और ये सबसे बनना चाहिए था. ठीक है, and within 10 minutes बनना चाहिए था. It should not be taking more than 10 or 12 minutes. बताओ किसी को कोई डाउट है? और कुछ खास वर्किंग भी नहीं करना पड़ रहा है ना. वी कैन जस्ट इसको क्या करना है, ये टेबल को कॉपी कर लेना फट से. मान लो बहुत कितना होगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे. यू हैव टू जस्ट कॉपी द टेबल एंड वर्क द वे यू सी इन द स्क्रीन. सो नथिंग मच वर्क इज आल्सो रिक्वायर्ड. यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड काउंट. ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें एनीवेयर, या कोई कुछ भी चीज डिस्कस करना है इस पे? चलिए इसके बाद वाला थोड़ा सा टफ है, इससे उसको देखते हैं. उसको अटेम्प्ट किया था, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन. ये नहीं बनाई. कुछ अटेम्प्टेबल हुआ किसी से? ये 3 करेक्ट हुए. ओके ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अटेम्प्ट होना चाहिए, बिकॉज इतना भी टफ नहीं है. वो आप जो सेंटेंस दे रहे हैं ना, उसकी वर्बोसिटी भले थोड़ी ज्यादा लग रही है, बट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है. ठीक है, यस इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. 3 करेक्ट 2 रॉन्ग, आई वुड से इट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट इन दिस. ठीक है, और इसका कोई एक सीक्वेंस नहीं है बनाने का ना. हो सकता है कि वी आर यूजिंग सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन, यू माइट हैव यूज्ड सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन इन द सीक्वेंस. So it's not like that the way I'll be solving right now वही एक तरीका है. ठीक है, of course the direction will be that, but थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है उसमें. minor variations here and there can be, मतलब it is okay because too many conditions are given ना. so ऐसा हो जाता है कई बार कि ठीक है कि पहला तीसरा और चौथे में से, तीसरा चौथे से भी हम कुछ निकाल सकते हैं, और थर्ड और फर्स्ट वाले से भी निकाल सकते हैं. अब किसको किस पहले निकाल रहे हो, किसको बाद में निकाल रहे हो, इट डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस. ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं. पहले पढ़ लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस. और मैं थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ भाई, एक बार थोड़ा पढ़ लो, बिकॉज मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा. इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो. मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देन विल स्टार्ट.
Okay, done. So let's read the entire thing and try to figure out that what should be the structure wherein we'll be putting the data. Okay, it's primarily arranging the things in table, but we have to be smart enough in making that columns and rows. Kya bola? There are 5 colleges. They are participating in regional sports tournament comprising of 4 events. The events are swimming, cycling, relay race, and shot put. ठीक है, ये swimming के बाद यहाँ पे common होगा, ठीक? Next, the 5 colleges are these. Each of the college is situated in one of the city among this. So what are the parameters? The parameters are events, then the colleges, right? Then the city. ठीक है? और एक और event है, that is the rank. Can I say these are the 4 different parameters? Yes or no? These are the 4 parameters. ठीक? Now, if I just halt at this point, which should be my anchor column? 4 कॉलम बनेंगे मान लो, या जो भी बनेगा, which should be my anchor column? किसको बनाना चाहिए? Should I make for the event? Should I make for the colleges? Should I make for the city, or should I make for the positions? पोजीशन को क्यों नहीं बनाना चाहिए? न्यूमेरिकल चीज है ना. There is no peculiar order of the cities, but there is definitely order of the ranks. ये तो मैं कई बार बता चुका हूं मैं. We should be making for the position, that is for the ranks. ठीक है ना? I'm not saying कि सिटी से करेंगे तो नहीं बनेगा, बट एक चीज थोड़ा सा डिफाइंड हो गई है. Best practice is to make for the any variable or the parameter which is mathematical in nature, so that their inherent properties can also be used. ठीक है? So the position, ranks, etc. yes, they should be taken, है ना? चलो, ये हो गया. नेक्स्ट क्या बोला? तो कॉलेज तो पोजीशन 1 वाज द विनर, और उसके बाद ये पॉइंट दे रहा है. सेकंड को ये, थर्ड को ये मिलेगा, फोर्थ को ये मिलेगा, और फिफ्थ वाले को 2 पॉइंट्स मिलेगा. ठीक है? तो कॉलेज विद द मैक्सिमम पॉइंट इन द 4 इवेंट्स कंबाइंड वर डिक्लेयर द विनर ऑफ द टूर्नामेंट. तो ऐसे कुछ खास बड़ी बात नहीं है. ठीक. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? We will be able to make the table only if we go through these condition once. तभी समझ में आएगा. And of course, simultaneously, we should also go for the questions. ठीक है? इसको एक बार स्कैन करते हैं. We'll just scan it and try to figure out कि क्या बोल रहा है. क्या बोला? The best position for I am got in the event was 3, but I am always get a better position than X and B. पोजीशन को लेके कंपेयर कर रहा है. नेक्स्ट, सिटी को भी पोजीशन के साथ कंपेयर कर रहा है. इस केस में भी सिटी को पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, कॉलेज को पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, कॉलेज को पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, कॉलेज को भी पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ. मतलब in each of these condition, position is a compulsory parameter which is being taken into consideration. So it's a big hint, right? Next thing is that what is the question? एक बार क्वेश्चन तो देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है. क्या बोला? हाउ मेनी कॉलेजेस कैन द सिटी दे आर सिचुएटेड इन बी यूनिकली डिटरमाइन? व्हिच कॉलेज वन द टूर्नामेंट? व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पोजीशन एक्सेट्रा? ये जो भी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को करना क्या है. आई शुड नो द रैंक ऑफ द कॉलेज फॉर द गिवन events, and I should also know that each college is from which particular city. Yes or no? Let me repeat. I should know the rank of the college for each of the event, and I should also know that which college is situated in which city. If I know this information, I can solve all the question. Say yes or no. ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं? And secondly, in the conditions given, the college is also associated with rank. The cities are also associated with the ranks, right? ठीक है ना? So if I want to make it intelligently, मैं थोड़ा क्या करता हूँ यहाँ पे ध्यान. Let me make columns. I'll be making 4 columns. These columns would be for the events, because for each event we'll be needing it, है ना? एक मिनट ऐसे इसे थोड़ा ऊपर थोड़ा सरका लेते हैं ऐसा. And my main column would be the position.
ठीक है, कितने पोजीशन अपने पास? वी हैव 5 पोजीशन, राइट? सो दिस इज फॉर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। और यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली स्विमिंग है, देन साइकिलिंग है, और क्या है यार, स्विमिंग, साइकिलिंग, रिले रेस है, और शॉर्ट पुट है। रिले एंड short put. This cells will be filled with two different items. One would be the college and the other would be the city. ठीक है? Because each college is from a corresponding city. So if I know that which college is from which particular city, so that is not going to make much of the difference. मतलब मुझे difficulty create नहीं करेगा, because college और cities के बारे में जो information देगा उसको मैं use कर सकता हूँ। ठीक है? यहाँ तक clear है guys? सबको समझ में आ रहा है how this table is created and what we are actually trying to do? Can you please confirm once so that we can move ahead? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है दूसरे से। सम इन्फॉर्मेशन आर गिविंग डायरेक्ट थिंग जो भी है उसको देखते हैं। तो लेट अस गो बाय दिस सीक्वेंस सो दैट वील जस्ट पुल अप ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हाटएवर इज पॉसिबल। सम इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि वी विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इमीडिएटली दैट टाइम, सो विल जस्ट अंडरलाइन। ठीक है, फर्स्ट क्या हो रहा है, द बेस्ट पोजीशन फॉर आई एम, the best position that I am got in an event was 3. That means, can I say in none of these events I am got rank 1 or rank 2? ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, in this particular column there will be no IM, in this particular column there will be no IM. Can I say this notation is capturing this information? ठीक, okay. Next, but I am always get a better position that XIMB, sorry, XIM in each of the event. IMs will always be above XIM in each of the column. So can I say this information is already captured and we can't fill any of the cells? Yes or no? ठीक है. Next, the college from Kolkata had its best position of 4 in swimming event. So the college from Kolkata's best position is at 4, and that is in swimming. This is the best. And numerically it was more than 4 for all other events. Obviously simple क्या बोलना चाह रहा है कि भाई फॉर साइकिलिंग में ये 5th पोजीशन पे होगा, रिले में भी 5th पोजीशन पे होगा, और शॉर्ट पुट में 5th पोजीशन पे होगा। ठीक है, राइट? हाँ, सेजल यू आर राइट, आई एम विल नॉट नेवर बी इन द 5th पोजीशन, I am will never be in the 5th position, otherwise this combination or this sorry this sequence is not correct। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि I am तो यहाँ तो नहीं होगा। तो इससे ऐसा भी बोल सकता ना, I will not be in Kolkata। Yes or no? If I am cannot be at the 5th position, I am very sure that I am is not situated in Kolkata or city associated with I am is not Kolkata। So swimming वाले में देखो, I think there is only one position for I am। Yes or no? Which position? Third। यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं दैट थर्ड पोजीशन वुड बी फॉर IIM। ठीक है ना भाई सबको? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लिखने, जो लिख रहा हूँ वो डिले से दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, तो आप किसी को प्रॉब्लम आ रहा है ना तो जस्ट लीव इट एंड अगेन ज्वाइन, ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कॉलेजेस, द कॉलेज फ्रॉम जमशेदपुर गॉट अ पोजीशन न्यूमेरिकली लेस देन एटलीस्ट 3 colleges in Shotpur। Numerically less in 3 colleges, that means he's getting better position now because of its better position, and better position than at least 3। So can I say the this 2 position will not be Jamshedpur? It will be either 1 or 2 in short put।
ठीक, यही बोलना चाह रहे हैं। ऑल्सो इट गॉट थर्ड पोजिशन इन साइकिलिंग, तो साइकिलिंग में ये थर्ड पोजिशन पे, तो ये जो भी आएगा वो जमशेदपुर। ठीक है भाई, फेयर इनफ। चलो नेक्स्ट, BIT got third position is shot put. BIT is third position is shot put. So from here I can very well say that BIT is not from Jamshedpur, neither from Kolkata. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. But never got a consecutive position in any event with the college from Jamshedpur. So consecutive position, BIT and the college from Jamshedpur will not be consecutive in any of the. So from here, can I say this two would not be from Jamshedpur? This college two would not be Jamshedpur. Otherwise, BIT and the college from Jamshedpur will be consecutive. So एक ही बच रहा है ना कि भाई शॉर्टपुट का जो कॉलेज होगा वो कहाँ से होगा, जमशेदपुर से होगा. ठीक है, बिकॉज और तो कोई चांस बन नहीं रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ दिस साफ सुथरा काम मैं इसको हटा देता हूँ, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा दोबारा. ठीक है, हाँ भाई, आई एम विल बी फोर इन ऑल अदर इवेंट्स. क्यों? हाँ, आप सही बोल रहे हो. आई जस्ट वांट दैट यू एक्सप्लेन. Because it is not in Calcutta. No, that is not the right bow. देखो, in cycling I can say that I am would be in the fourth position. Why so? Because short put में the college is from Jamshedpur, right? Yes or no? IM can never be in the first position or second position. So IM can never be from Jamshedpur, right? IM cannot be at this place, cannot be at this place, cannot be from Jamshedpur. So obviously it is not from Calcutta. So IM would be at this place. ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे नहीं हो सकता. ऐसा थोड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली तो नहीं लग रहा. आगे बढ़ते उसको देख लेते हैं. मैंने कहा ना कि ऐसा जरूरी है कि मैं जो ऑर्डर बता रहा हूँ उसी में होगा. ठीक है, बट यस वी शुड नॉट पुश आवर अजम्पशन, वो कंक्लूसिवली आना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. ठीक है, बिट गॉट थर्ड पोजीशन इज आउटपुट बट नेवर गॉट अ कंसेक्यूटिव पोजीशन, ये तो कर लिया हमने. ठीक है, फिर क्या बोला, XLRI got position of 2 or less numerical in each event. This is a very important information. What it say that XL will be either in the first position or in the second position. ठीक है, राइट. हाँ, अंतरिक्ष बोल रहे हैं कि आयम जो है ना वो यहाँ पर भी होगा. ये सही बात है. क्यों होगा? बिकॉज यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पर होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल वी कैन से दैट कि ये कितना होगा, एक्साइम होगा. ये क्या होगा, एक्साइम होगा. ये क्या होगा, एक्साइम होगा. बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड ना, एक्साइम इज फ्रॉम कोलकाता, तो ये क्या होगा, एक्साइम होगा. ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको? अभी जो किया एक्साइम को फिट किया वो क्लियर है सबको, इस रूल को यूज करके? ठीक है, ओके. सो कैन आई से एक्सेल इज ऑलवेज गेटिंग फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन. सो एक्सेल इज नॉट फ्रॉम जमशेदपुर. व्हाई सो? बिकॉज इन साइकिलिंग जमशेदपुर से कॉलेज कहां पर है, थर्ड पोजिशन, राइट. सो एक्सेल इज नॉट फ्रॉम जमशेदपुर. सो यहाँ पे एक्सेल आ रहा है, यहाँ पर आएगा. सो एक ही बच गया ना, कौन सा कॉलेज था? विच कॉलेज इज लेफ्ट नाउ? हाँ, NIT. सो NIT इज फ्रॉम जमशेदपुर, ये भी NIT आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? और कुछ कर सकते हैं? अभी अभी तक जो पढ़ा उसकी बात कर रहे हैं ना, आगे की कंडीशन को मैच मत करना. अभी तक जो पढ़ा और कुछ कर सकते हैं इसमें? XLRI has to be either in position 1 or position 2. Cycling in position 3, the college is from Jamshedpur. So definitely XLRI cannot be from Jamshedpur. That means XLRI cannot be at this place. These three we have already filled. So XLRI has to be in the second place in short put. So by default, NIT would be in the first place. And hence
we have identified that NIT is from Jamshedpur. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे होगा उसको आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, बीआईटी गॉट थर्ड पोजीशन बट नेवर गॉट, ये वाला कर लिए थे। एक्सएलआरआई गॉट 2 और लेस न्यूमेरिकली, ये भी देख लिया। द कॉलेज फ्रॉम रांची गॉट पोजीशन ऑफ 3 और लेस न्यूमेरिकली इन ईच ऑफ द इवेंट, 3 और लेस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे रांची से कोई नहीं होगा, यहाँ पे रांची से कोई नहीं होगा, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस में रांची से कोई नहीं होगा, हो सकता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। ठीक है, राइट। सो आईएम जो है वो रांची से हो सकता है क्या? कैन आईएम बी फ्रॉम रांची? नो। आईएम कलकत्ता से नहीं हो सकता, आईएम जमशेदपुर से नहीं हो सकता। तो आईएम के लिए ऑप्शन कौन कौन से बचे? देयर आर टू ऑप्शंस लेफ्ट फॉर आईएम्स, राइट? फॉर आईएम देयर आर ओनली टू ऑप्शन, वन इज विच, मेरे को थोड़ा खुद ही बताओ यार कौन सा। डी, एक और होगा ना, डी एंड बी, है ना? आईएम जो होगा आइदर डी और बी हो सकता है। ये नोटेड इंफॉर्मेशन, इसको नोट करके रख लेते हैं आगे। XLRI is not situated in Ranchi, so this is not Ranchi, है ना? XLRI is not Ranchi, तो चलो इस इंफॉर्मेशन को यहीं से पिक कर लेंगे, that XLRI, XL is not from Ranchi, ऐसा लगता है। ठीक है, okay, so if this is not Ranchi, these two cannot be Ranchi, so can I say BIT is from Ranchi? BIT has to be from Ranchi. ठीक, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NIT got numerically higher rank than BIT in exactly 3 events. Exactly 3 events. That means यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, in short put NIT is getting better than BIT. But here it says that NIT got numerically higher rank. Numerically higher rank means it is getting less rank compared to BIT in exactly 3 events. Yes or no? That means in swimming, cycling and relay, BIT will always be above NIT in each of these 3 columns. Can you please confirm, guys? In the column of swimming, cycling and relay, BIT will always be ahead of NIT. So can I say यहाँ इन दोनों में अपने को देखना है, एक में BIT आएगा, दूसरे में NIT आएगा, सॉरी एक में BIT आएगा और एक में एक्सेल आएगा, है ना? अब किस में आएगा वो अपने को देखना है। सिमिलरली here also, now here in swimming we can say that this is from NIT. Why so? Because I can't put BIT here and NIT here, otherwise XLRI will be at the 5th position. XLRI would be in the 5th position because of this logic. ठीक है, so NIT would be at the 5th position and NIT is from जमशेदपुर। ठीक है ना, सही बोल रहा हूं? ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, ये दे रहा है, द कॉलेज फ्रॉम भुवनेश्वर गॉट न्यूमेरिकली हायर रैंक देन कॉलेज फ्रॉम रांची इन ऑल इवेंट, दैट भुवनेश्वर इज ऑलवेज अबव देन रांची। Bhubaneswar is always above than Ranchi in all the events. So can I say XLRI is from Bhubaneswar? और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, which part you want me to repeat? चामल फिर से एक बार बताओ कौन सा पार्ट रिपीट करना है। अनम्यूट करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं। NIT, BIT will always be ahead of NIT in all the columns ना, in all the 3 columns बोल रहा है ना, except one, in all the other 3 BIT is getting better rank than NIT, ये वाला। तो ये दोनों में BIT और NIT पुट कर दूंगा तो XLRI के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी ना, बिकॉज XLRI हैज टू बी आइदर इन पोजीशन 1 और पोजीशन 2 इन ऑल द इवेंट्स। तो NIT के लिए एक ही जगह बच रही है, 5th वाला। इन दो पे वो तीनों को नहीं एडजस्ट कर सकते, तो तभी हो सकता है जब वन ऑफ दीज टू वुड बी XLRI एंड अदर वुड बी BIT। सो बाय डिफॉल्ट NIT वुड बी एट द 5th पोजीशन, और ये भुवनेश्वर वाला भी आ गया। ठीक है, सो अब मैं बोल सकता हूँ भुवनेश्वर हो गया ना भाई, तो आई एम इज फ्रॉम दुर्गापुर, आई एम इज फ्रॉम दुर्गापुर। ठीक है, राइट। And Bhubaneswar is always
अबाउ रांची। यहाँ पे भुवनेश्वर और रांची को फिट करना होगा तो यही तरीका है ना, भुवनेश्वर यहाँ पे होगा, रांची यहाँ पर होगा। बोलो। उल्टा कर रहा हूँ क्या, गलत कर दिया क्या मैंने? एक सेकेंड, अपन यहाँ पे थे, रुको, ये बी कब पुटअप किया था मैंने? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हो सकता है द कॉलेज फ्रॉम भुवनेश्वर गॉट न्यूमेरिकली हायर रैंक देन, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, I made the mistake. I made the mistake. It is the other way around, guys. Huh? It is the other way around. It should be, just a second. Bhubaneswar will be below Ranchi. ऐसा होना चाहिए, ठीक है? My mistake. So in this case, this would be R and this would be B. ठीक है, अभी सबको क्लियर हो गया मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था? So this is also B and this would be B. ठीक है? Now R is ahead of B always. R is ahead of B always. और BIT, अरे यार मैं गड़बड़ कर दिया क्या? ये आर कहाँ से आ गया? ये तो ये दोनों का था ना। हाँ ओके, सॉरी। आई एम इज नाउ इन बी, सो डेफिनेटली डी वाला किसको जाएगा? एक्सएलआरआई। सो एक्सएलआरआई इज फ्रॉम डी। एक्सएलआरआई इज फ्रॉम डी। ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से। नो, इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बीआईटी एंड द कॉलेज फ्रॉम भुवनेश्वर। बीआईटी एंड द कॉलेज फ्रॉम भुवनेश्वर, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट बीआईटी एंड आई एम got consecutive positions in exactly 3 events. Got consecutive position in exactly 3 events. ठीक है? सो कहाँ पर देखो, यहाँ पे तो नहीं आ सकता कॉन्जिकेटिव, सो डेफिनेटली वो कॉन्जिकेटिव इन 3 इवेंट्स हैज टू बी दीज 3। ठीक है, आई एम और बी आई टी, दे शुड बी कॉन्जिकेटिव। तो साइक्लिंग में तो नहीं है, दैट मीन दे वुड बी इन ऑल अदर थी, तो बात खत्म होगी ना। यहाँ पे तो हो ही गया। यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए? दिस वुड बी बी आई टी, दिस वुड बी एक्सएल आर आई, राइट? यहाँ पर आई एम कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, हो सकता है क्या? अगर आई एम यहाँ पर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड में बीआईटी आ गया। रिले वाले में देखते हैं, बिकॉज रिले वाले में हमने ज्यादा कुछ फिलअप नहीं किया है, साइकिलिंग वाले में देखते हैं। ठीक है, साइकिलिंग वाले में वी हैव टू एंश्योर दैट कि बीआईटी और एनआईटी, बीआईटी और आईएम ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, एंड बीआईटी इज फ्रॉम रांची ना, तो यहाँ तो बीआईटी नहीं आएगा बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे रांची नहीं है। बीआईटी अगर यहाँ पे आता है तो आईएम यहाँ पर आ जाएगा और एनआईटी ऊपर चला जाएगा इसके। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अदर देन शॉर्ट पुट इन ऑल अदर केसेस बीआईटी इज अबव एनआईटी। बीआईटी इज अबव एनआईटी, तो रिले में भी बीआईटी एनआईटी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और आई एम इन दोनों जगह पे आ नहीं सकता। सो कैन आई से द ओनली वे इज दैट आई शुड पुट आई एम हियर, एनआईटी हियर एंड बीआईटी हियर। तो दिस एंड दिस, बोथ द कंडीशन विल मैच। कैन यू प्लीज कंफर्म? इसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा? कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए ना पोजीशंस इन एग्जैक्टली 3 इवेंट्स, सो ऑब्वियसली दिस विल बी एक्सएलआरआई। ये भी हो गया। यहाँ पर भी अपने को देखना है कि कहां पर आएगा बीआईटी और कहां पर आएगा दिस। तो बीआईटी इज अबव एनआईटी, आईएम वाला छूट गया। अब ये साइकिल वाले, इस वाले केस में देखना है ना, थोड़ा ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, रांची, ये भुवनेश्वर हो गया और ये जे हो गया। अब साइकिलिंग वाला है एक बचा हुआ है, इसको अपने को देखना पड़ेगा। बताओ भाई, कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए? तो ऐसा लॉजिक है जिसमें कि वी कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि एक्सएलआर यहाँ पर आएगा, बीआईटी यहाँ पर आएगा, या अदर वे राउंड, इसे होने वाला। ठीक है, एनीवन, एनी आइडिया?
BIT must be one in cycling. Why? कोई पॉइंट मिस किया क्या अपन? 1 2 3 4 BIT got third position shot put but never got a consecutive position in any event with the अच्छा हाँ ये जमशेदपुर वाला अपन मिस कर दिया ना, जमशेदपुर हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे BIT नहीं होगा because of this Jamshedpur is not consecutive to the college which is from sorry BIT is not consecutive to the college which is from जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ पे BIT नहीं आएगा, तो यहाँ पे BIT आ जाएगा और यहाँ पे XLR आ जाएगा। ठीक है, विच इज फ्रॉम D एंड दिस इज फ्रॉम R। बस फिट हो गया, उसके बाद तो फिर ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस हमने फॉलो किया ना वही सीक्वेंस से बनेगा, वो सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट मोटे मोटे तौर पे वी हैव टू एंश्योर दैट द कंडीशंस should not be should should not be read incorrectly। ठीक है, अदरवाइज वो गड़बड़ होगा, तो हालांकि इसमें गड़बड़ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा बात, बिकॉज चीजें फिर फिट नहीं होगी ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है भाई, अब बताओ कोई डाउट है किसी चीज में? इसमें क्या है ना कि एक चीज क्या था कि बिकॉज इन द सिंगल सेल वी आर पुटिंग बोथ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर मैं क्यों लिख रहा था, बिकॉज द इंफॉर्मेशन आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन आर अबाउट सिटीज, सम इंफॉर्मेशन अबाउट आर अबाउट कॉलेजेस। दैट्स व्हाई आई वांटेड एक कंसिस्टेंसी की कॉलेज और जो सिटी है ना सबको ही बराबर लिखते रहे, सो दैट की जो कंडीशन है वो फटाफट पिक किए जा सके। बिकॉज ये BIT वाला तभी पिक होता जब ये जे दिखता, मुझे जे दिखा तो ऑब्वियसली यहाँ पे BIT नहीं होगा, तो यहाँ पे BIT होगा, समथिंग लाइक। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन में पढ़े, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चलिए बताइए फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 में कुछ गड़बड़ है क्या? चलो आते हैं ना, पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, पहले कुछ गड़बड़ होगा तो उसको जब देखेंगे तब देखेंगे। फॉर हाउ मेनी कॉलेजेस कैन द सिटी दे आर सिचुएटेड इन बी यूनिकली डिटरमाइंड? ये 5 होगा ना, बिकॉज फॉर ऑल द कॉलेजेस वी कैन डू राइट। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। फिर क्या बोल रहा है, विच कॉलेज वन द टूर्नामेंट? ये भी तो निकाल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है ना XLRI जीत रहा है। XLRI या तो पहले पोजीशन पे या तो सेकंड पोजीशन पे, इसी को तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये सुनो, BIT इज ओनली वंस इन द फर्स्ट पोजीशन, बाकी 2 पे वो है, और तो कोई है ही नहीं, XLRI आएगा। हाँ पॉइंट्स बोलोगे तो पॉइंट्स निकाल दे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं ना, XLRI BIT NIT IIM और XIM, इन सब का ना वो निकाल लेते हैं, कहना चाहिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, XLRI का कितना आएगा, फर्स्ट के लिए 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसके लिए सेकंड 8 मिल रहे हैं, इसके लिए 6, इसके लिए 4 और इसके लिए 2, ये पहले लिखा हुआ था। ठीक है, तो XLRI कितना मिल रहा है, 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, 36 पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको। BIT के लिए कितना मिल रहा है आप मुझे बताओ, BIT का टोटल पॉइंट्स बताओ, बिकॉज आगे आई थिंक ये पॉइंट्स के भी क्वेश्चन है ना, तो यहीं पे कर लेते हैं। BIT का कितना, 32 पॉइंट्स है। ओके, NIT का 2 8 12 22, सही कर रहा हूँ? ठीक है, IIM का 6 10 16 20, ठीक। XIMB का 4 2 2 2, है ना, 8 + 4 = 12। ठीक है भाई, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड बाय XLRI एंड द कॉलेज फ्रॉम जमशेदपुर? So XLRI is 36 and college from Jamshedpur is NIT, so their difference is 14। The answer for this question is 1 4। 10 आएगा क्या? नहीं, ये 4 हो गया ना, अच्छा 6, सॉरी 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 यार, क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो 10 आएगा, 4 + 2 + 2 + 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which college got the maximum number of
distinct position in the 4 events. Maximum number of distinct, देखो XLRI नहीं होगा because वो तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, ये इसके दो डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं XLRI के, फर्स्ट और सेकंड ही आ रहा है ना। BIT के क्या है, सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी आ रहा है ना, इसके 3 है। NIT का देखो फिफ्थ, दिस दिस एंड दिस, इसके 4 है। अब इस 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते किसी के। NIT is from Jamshedpur, right? So option is क्या होगा, मैं अच्छा विच कॉलेज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस, हाँ NIT आएगा, राइट। सो NIT आएगा तो NIT को तो कितने पॉइंट मिल रहे, 22। IIM भी नहीं है, कॉलेज में कोलकाता, नन ऑफ दिस आएगा, ऑप्शन डी आएगा आंसर, इट वुड बी ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, बताओ भाई कौन सा करेक्ट, ये है मेरे ख्याल से बी वाला, सैंडी कोलकाता, ठीक है। सो अगेन माइट बी स्लाइटली लेंथी देन द प्रीवियस वन, बट ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं था अगर आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी बोल रहे हो, विच कॉलेज वन द टूर्नामेंट, अच्छा ये सॉरी यार ना, एक्सएलआरआई, एक्सएलआरआई तो जीता है ना, लेकिन अच्छा ये एक्सएलआरआई जमशेदपुर में नहीं है, एक्सएलआरआई फ्रॉम डी है ना, तो कॉलेज फ्रॉम दुर्गापुर, ऑप्शन सी वुड बी द राइट। एक्सएलआरआई यहाँ पे दिया वो, इट इज बेसिकली प्लेइंग विद आवर माइंड ना, एक्सएलआरआई एंड जमशेदपुर दे बोथ आर सो कंबाइंड इन आवर माइंड ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 14, क्वेश्चन नंबर 4 का डी और 5 का ऑप्शन बी, ठीक। इतने लेवल का क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, हाँ वो हो ही जाता, क्या करें इसमें मैं बड़ा कॉन्शियस था कि आप एक्सएलआरआई का जे नहीं लिख रहा था, तो अच्छा वो पता चल गया पहले, ठीक है। अब देखो इसमें आई थिंक भुवनेश्वर में है क्या IIM, है क्या भाई, भुवनेश्वर में IIM है क्या, अभी इतने IIM हो गए ना, याद ही नहीं रहता। यस सर, हाँ अभी कितने, वैसे कितने IIM हो गए मेरे ख्याल से, हैव दे क्रॉस 2 डजन, हो गए होंगे मेरे ख्याल से, राइट। देयर आर ओल्ड IIMs देन न्यू IIMs देन बेबी IIMs देन न्यू बेबी IIM, ऐसा कुछ है, राइट। ठीक ठीक है, हाँ जब जैसे एग्जाम दिया था ना, तो एग्जाम भी इज इन भुवनेश्वर, तो वो भी एक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिरमौर, वैसे वेर इज सिरमौर, वेर इज सिरमौर, शिमला में है ना, हाँ याद रख लेना, कभी IIM का इंटरव्यू होगा ना, तो उनके तो कंबाइंड इंटरव्यू होते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि सिरमौर कहाँ है, इसको फिर इंटरव्यू क्वेश्चन पता चला, IIM से कॉल आया, ये नहीं मालूम है, जाऊंगा जाऊंगा कैसे अगर सिरमौर में सिलेक्शन हो जाएगा तो, ठीक है। इट्स अ फनी सिचुएशन गेट क्रिएटेड इन इंटरव्यू। हाँ खुद सोचो ना, मतलब सपोज यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू IIM's इंटरव्यू, बिकॉज दे हैपन इन कंबाइंड ना फॉर वन, and you are ready to go for IIM Sirmaur. So at least you should be knowing ना where is Sirmaur. हाँ मोहम्मद बोलो, बोलो फैज क्वेश्चन पूछो, you can unmute and ask, हाँ। सर अगर हम कॉलेज को अगर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लिख के इस अरेंजमेंट की जगह दूसरी अरेंजमेंट हाँ ट्राई ठीक करें है, चलो जो तुम्हारे मैंने अरेंजमेंट को नहीं, रुक जाओ मैं पहले बना लेता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो, तो यू आर जैसे मैंने सेइंग किया था दैट, लेफ्ट हाँ मोस्ट कॉलेज में कॉलेज के नाम फिक्स कर दिए मैंने ठीक जैसे है, किया था। ठीक है। देन उसके नेक्स्ट कॉलम में सिटी लिख दिया पर पता नहीं है मुझे कौन सी सिटी किस उसके साथ आएगी। तुमने ऐसा लिख दिया होगा, सपोज XLRI हो गया, BIT हो गया, एग्जाम हो गया, NIT हो गया, और से IIM हो गया, ऐसा तुमने मालूम लिख दिया, ठीक है। अब बताओ यस, आप क्या बोल रहे हो। उसके बराबर मैंने सिटी लिख दिया कॉलम बना ठीक दिया है, सिटी का। फिर एक कॉलम तूने बनाया सिटी के लिए, ठीक है। जैसे फिर सारे कॉलम बनाए मैंने एक्टिविटीज के लिए और उनमें हाँ मैं रैंकिंग लिखता गया जो मुझे पता चलती गई जैसे IIM के आगे हाँ, फ्लोर तो आ गए। जैसे मान लो कि स्विमिंग में इसका 4th आ रहा है, ऐसा कुछ लिखते यस गए, सर। ऐसा तुम बोल रहे हो, राइट। हाँ वैसे भी कर सकते हो, मैं क्या कोशिश क्या रहती है, कोई चीज जिसमें इनहेरेंट सीक्वेंस है उसको आप वैसे ही रहने दो ना, टेक द एडवांटेज ऑफ इट। फिर कई बार क्या होता है ना कि इनहेरेंट सीक्वेंस हमको बहुत इंपॉर्टेंट वे दे देता है, सो दैट कि हम कंफ्यूज ना करें।
आप जो करें देखो, कोई भी कर सकता है ना, कोई हो सकता है कि क्या बनाएगा, जैसे मुझे एक्टिविटी को मुझे बढ़ा। सर जो दिक्कत होती है कि हर चीज अगर फ्लोटिंग रहती है ना तो हो नहीं पाता, तो एक आध चीज मैं कोशिश करता हूँ कि फिक्स हो जाए, कि कोई चीज तो फिक्स हो जाए प्लेस तो पे। वो जो फिक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो फिक्स है ना, वो तुम्हारा रैंक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पढ़ो, देखो ये एक मिनट में इसको हटा देता हूँ ना, वो कहाँ गया वो, ये नहीं था। ये सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ो, एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट पोजीशन। या इनहेरेंटली अपने को मालूम है ना कि टू टू के बाद ही थ्री आता है, थ्री के बाद ही फोर आता है। तो ये सारे चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे बाद में। तो एक तो ऑलरेडी कंडीशन है, उसको हम देख ही रहे हैं। सेकेंडली क्या है कि फिर वो कंडीशन को भी अगर मैं, सॉरी, पोजीशन को भी अगर मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अननेसेसरी की कॉम्प्लेक्सिटी को ना बढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं बोलूँ। तो थोड़ा सा गलत हो भी गया इसमें कि एक्सएलआई नहीं, दुर्गापुर हो गया, वही मैं बोल रहा हूँ, वो हो थोड़ा सा जाता है क्योंकि मिस्टेक हो गया था। हम हमको तो करने का ना, इसलिए बोलता हूँ ना, मेथोडिकल और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। उसके लिए कुछ कुछ क्लूज है। वो क्लूज क्या है कि भाई, रैंकिंग, पोजीशन, ऐसा कुछ भी, जैसे मान लो हाइट के बारे में देता, ठीक है, और रैंकिंग के बारे में देता, मार्क्स के बारे में देता, ऐसा कोई भी चीज ना जिसका प्री डिफाइंड ऑर्डर है, दैट शुड बी योर एंकर कॉलम। क्योंकि ये तो मालूम है ना कि ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर, आप सिटी से भी बना सकते हो, हम कॉलेज से भी बना सकते हैं, किसी से बना, बट उसको बनाने का आपको फायदा नहीं। आप देखो ना, थोड़ा ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा था हम जो सॉल्यूशन कर रहे थे? इट वॉज मच बेटर कंपेयर टू इफ वी मेक द कॉलेजेस और द इवेंट्स एज द मेन कॉलम। ठीक है। हाँ भाई, और बताओ, किस जिससे नहीं बना था वो उससे पूछो भाई, क्या क्या दिक्कत आ गई थी कि नहीं बन रहा था। आपको पैरामीटर्स को हैंडल करना आना चाहिए ना, 3 से 4 पैरामीटर होते हैं तो वो हैंडल हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। और मैंने कई बार, बहुत बार भी बोला है कि टेबुलर फॉर्मेट इज द बेस्ट वे। 90% केस में आपको टेबुलर फॉर्मेट ही आएगा, अदरवाइज की जो सेट दिया वो खुद ही अपने आप में कुछ अलग चीज हम बात कर रहे हैं। या नेटवर्क वाला तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, वेन डायग्राम होगा तो पढ़ के ही समझ में आएगा। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे वो है तो सुडोकू टाइप वाला होता है, जिसमें टेबल में डाल दो, या फिर आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को फिट करना। ठीक है। चलो, कुछ लोगों ने मेरे को कुछ क्वेश्चन वगैरह का भेजा था, मैं एक्चुअली कंपाइल नहीं कर पाया बिकॉज आई कांट जस्ट टेक दैट इमेज ना, ये जो सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा हूँ उसमें मेरे को उसका टेक्सचुअल फॉर्मेट होना चाहिए। तो बिकॉज आई डिडंट गेट सम टाइम टू एक्सट्रैक्ट दैट, इसलिए मैंने नहीं किया। बट नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगा ना, उसमें मैं डेफिनेटली 3-4 लोगों ने जो मुझे दिया वो मैं दूंगा। LRDI slot 1 लास्ट ईयर का बोल रहे हो? हाँ करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप वाला जो बोलो ना, थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना, कॉपी करके, हाँ व्हाट्सएप कर दो, जो भी डाउनलोड कर रहता है कर दो। मैं देखो सारे नहीं ले पाऊंगा, बट जो जो मैं उसको कॉपी करके इस फॉर्म, क्योंकि ये जो आपको कर रहा हूँ ना फॉर्मेट में, आप देखो इसमें मेरे लिए इजी क्या होता है जो एक्सप्लेन कर, मैं लेयर हटा सकता हूँ, उसके ऊपर पुटअप कर सकता हूँ, मैं कोई चीज पे लिखा हूँ उसको मैं मिटा सकता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं कहाँ से स्टार्ट किया था और किधर जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अगर टेक्सुअल फॉर्मेट होता है तो इट्स बेस्ट, एंड प्लीज डू सेंड मी सॉल्यूशन एंड आंसर कीज आल्सो, अगर है तो। बगैर से आंसर की के तो भाई भेजना भी मत, बिकॉज वो उतना मैं माथा नहीं लगाऊंगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है ना, वो सेट ही बहुत डूबियस सा होता है, खामखा उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट भी कहने की जरूरत नहीं, तुमको लग रहा है ना कि दिख गया सॉल्यूशन भी, सब चीजें, सब लोग बोल रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो एनीवे डोंट गो फॉर इट। हाँ, कोई मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है, अच्छा सेट है, डिफरेंट है, जो आपको लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब हाँ इस टाइप का सेट से आता है, तो जो भी है तो उसको अपन डिस्कस करने लायक, बिकॉज बहुत ज्यादा हैवी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, तो दोनों प्रॉब्लम होती है। मेरे को एक्सप्लेन करने में डेफिनेटली बहुत टाइम एंड एफर्ट तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, वो तो विदाउट वो, उसमें कोई वो नहीं है डाउट। आप में से ज्यादा लोगों को समझेगा नहीं फर्स्ट टाइम, प्रॉब्लम ये आ जाती है। आई कैन पुट एफर्ट फ्रॉम माई एंड, लेकिन वो होता है ना कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2-3 बार उसको करके बैठना पड़े तब जाके, जैसे एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था, 2017 में आया था, मैंने उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन वगैरह सभी के डाले हैं ना। तो एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था वो, मतलब आई कैन टेल यू, सबसे डिफिकल्ट सेट है कैट में जो आया, सबसे ज्यादा 2017 में ही आया था वो।
आई थिंक स्लॉट 2 में आया था या स्लॉट 1 में। एक एरोप्लेन है, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट है, कुछ कुछ 15-17 लोगों को बैठाना था उसमें, अलग अलग जगह पे, कोई विंडो सीट पे बैठा है, कोई इसकी बाजू में नहीं बैठा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो ऑफकोर्स नहीं बनता वो एग्जाम में तो डेफिनेटली। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 सेट कम से कम लूँ, सो दैट कि अपन थोड़ा और टाइम निकाल पाए उसमें, है ना। ठीक, और कोई भी डाउट वाउट जो भी रहता ना, मुझे व्हाट्सअप करते जाओ, मैं उसको पुल करके एक बार मैं थोड़ा सा डोप बनाते जा रहा हूँ, जैसे बन जाएगा 4-5 सेट ऐसे है ना, उसको फिर मैं आपको इस ऑर्डर में करके दे दूंगा, तो सबको अटेंड करना, नेक्स्ट क्लास को डिस्कस। ठीक है, चलिए गुड नाइट, मीट अगेन।